ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھ میں ایک ایسی کمی تھی کہ اماں میری شادی نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے اماں نے میری شادی ایک فقیر سے کر دی۔ اماں اس فقیر کو میرے قریب نہ آنے دیتی کہ جب تک تو امیر نہیں ہوتا میری بیٹی کے پاس نہ آنا، تاکہ دنیا کے سامنے میرا راز بھی چھپ جائے اور شادی بھی ہو جائے۔ لیکن اب مجھے اس فقیر سے محبت ہو گئی تھی۔ یوں ایک دن اس کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن جب آدھی رات وہ مجھے ایک محل میں لے گیا تو میں دنگ رہ گئی۔ پر ہوش تو تب اڑے جب وہاں 11 میرا نام نمرا ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی، جبکہ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے ابا کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے کافی بیمار رہتے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اماں مجھے یہی بتایا کرتی تھی کہ میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اماں کے کہنے کے مطابق ابا کا بہت علاج ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابا زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ زندگی گزار نہ پائے اور ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے بابا کی کمی اکثر محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ میری امی کے بھائی یعنی کہ میرے ماموں، وہ ہماری کچھ مدد کر دیا کرتے تھے اور کچھ میری خالہ ہماری مدد کر دیا کرتی تھی۔ رشتہ داروں کی بہت مدد ملتی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ چیزوں کی اور پیسوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی اور بہت چھوٹی عمر میں ہی سمجھ آ گئی تھی۔ میرے دل میں بہت سارے ارمان تھے جنہیں میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ اس وقت میرا اپنا گھر ہوگا، میں بیاہ کر دوسرے گھر چلی جاؤں گی۔ اس وقت میں اپنے سارے ارمان پورے کر لوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو یہی کہا جاتا ہے، جو کچھ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں کر پاتی اور جس چیز کی اجازت انہیں ماں باپ کے گھر میں نہیں دی جاتی، وہ کام اپنے سسرال میں جا کر کرتی ہیں۔ ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ اپنے شوق سسرال جا کر پورے کرنا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی اپنے بہت سارے شوق سنبھال کر رکھے تھے۔ اماں سے میں نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ہماری فرمائش پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا گھر ہی ہمارے رشتہ داروں کی مدد سے چل رہا تھا۔ ایسے میں کوئی خواہش کرنے کا سوچنا بھی غلط ہی سمجھا جانا، اس لیے میں چپ رہتی۔ سرکاری اسکول اور کالج میں سے ہم دونوں بہنوں نے تعلیم حاصل کر لی تھی اور اب گھر میں ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے آ جاتے تھے۔ وہ پیسے بھی میں اماں کو تھوڑے تھوڑے کر کر دے دیا کرتی۔ کبھی ہمارے گھر کا سامان لانا ہوتا تو کبھی کوئی چیز ختم ہو جاتی، تو ایسے میں اگر اماں کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ مجھ سے مانگ لیا کرتی تھی، اور پھر ایسے وہ پیسے بھی گھر کے خرچے میں ہی نکل جاتے۔ میرے مقابلے میں میری چھوٹی بہن وہ تھوڑی الگ قسم کی تھی۔ اس کا مزاج مجھ سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ جو چیز پسند کر لیتی یا جو چیز دیکھ لیتی تھی، اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی تھی، اور اس بات پر اسے اماں سے کافی ڈانٹ پڑتی، لیکن اماں کی سننے کے بعد بھی وہ اپنی مرضی کرنے سے پیچھے نہ ہوتی۔ میری عمر 22 سال ہو گئی تھی اور اب میں اسی انتظار میں تھی کہ میری اماں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر مجھے رخصت کر دیں گی، اور اماں نے رشتے دیکھنا شروع بھی کیے تھے۔ جب ماں نے رشتے کروانے والی خالہ سے رشتے کی بات کی تھی، اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے کسی قیدی کو اس کی قید سے رہائی مل رہی ہو۔ میں نے جو اپنے مستقبل کو لے کر اتنے سارے سپنے سجائے تھے، اور میں نے جو بہت ساری خواہشات اپنے دل میں دفن کر کے رکھی ہوئی تھیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساری پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہونے والی ہے تو خواہشات بڑھنے لگتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی مرضی کر سکتی ہوں، تو اس بات کو سوچتے ہوئے میں نے اور بہت ساری خواہشات اپنے دل میں پال لیں کہ شادی ہونے کے بعد جب میرا اپنا گھر ہوگا تو میں یہ ساری چیزیں کروں گی۔ لیکن وقت اور حالات کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس وقت ہمارے گھر میں رشتے والے آئے تو میری اماں نے مجھے ان کے سامنے جانے سے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مجھے نہیں، میری چھوٹی بہن کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس بات پر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ مجھے غصہ بھی آیا تھا، کیونکہ اصول کے مطابق اماں کو میرا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ جیسے کہ میں بڑی تھی تو اسی لحاظ سے پہلے میری شادی ہونی چاہیے، لیکن اماں میری چھوٹی بہن کی شادی کرنے کو تیار تھیں۔ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی، لیکن اس وقت میں خاموش ہو گئی۔ ان لوگوں نے میری چھوٹی بہن کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔
ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन के लिए खुश नहीं थी, लेकिन मुझे अम्मा की नाइंसाफ़ी पर अफसोस हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा था कि मैंने ये सोचा हुआ था कि अब मैं अपने घर में जाकर सुकून से ज़िंदगी गुजारूंगी, जहाँ पर यह गुर्बत की ज़िंदगी नहीं होगी और जहाँ पर अपने दिल को मारकर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अम्मा ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो मेरी बहन को पसंद करके चले गए और कुछ ही दिनों में उन्होंने शादी की तारीख भी रख दी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने अम्मी से साफ बात की थी। उनसे यही कहा था कि अगर उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता कर भी दिया है तो इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन असूल के मुताबिक उन्हें मेरी शादी करनी चाहिए। इसके बाद ही मेरी छोटी बहन की शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने छोटी की शादी करने का इरादा किया है तो उन्हें साथ मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि वो मेरी शादी अभी नहीं कर सकती, इसकी कोई वजह है, वो वक्त आने पर मुझे वो वजह बता देंगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे यही लगा था कि शायद मुझे टालने के लिए, मुझे बहलाने के लिए वो ये बात कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात पर भी हैरान थी कि आखिर इसमें हर्ज क्या था। आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि उन्होंने इस किस्म का फैसला लिया था। इस वक्त अम्मा ने मुझसे यही कहा था कि मेरी छोटी बहन की शादी खैर आफियत से हो जाए, इसके बाद मुझसे बात करेंगी और मुझे सारी हकीकत बताएंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब चुप रहकर शादी में शिरकत करने के अलावा, शादी की तैयारी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी और मैं नहीं चाहती थी कि इसके दिल में मुझे लेकर कोई भी ऐसी बात आए जिससे हम दोनों बहनों का रिश्ता खराब हो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा अम्मा और मेरी बहन के सिवा था ही कौन। अम्मा मेरी छोटी बहन मुझे अपने से ज़्यादा अजीज़ थे, इसलिए इनकी खुशियाँ भी मुझे खुद से ज़्यादा अजीज़ थीं। मैंने अपने सारे अरमानों को, खुशियों को एक तरफ करते हुए अपनी बहन की शादी में जी जान से शिरकत की और उसकी शादी की तैयारियों में पूरा अपना किरदार अदा किया था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में किसी किस्म की कोई भी कमी रहे। शादी हो गई थी और वो रुखसत होकर अपने घर चली गई। मुझे यही लगा था कि छोटी बहन की शादी के बाद अम्मा मेरे बारे में कुछ सोचेंगी, लेकिन उसकी शादी करके भी वो ऐसे ही बेफिक्र हो गई थी कि जैसे उनकी एक बेटी थी, जैसे उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और अब उनके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। मैंने उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया कि उनके बाद भी अभी उनकी एक बेटी मौजूद है जो कि मैं हूँ। जब मैंने अपनी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई तो उनका ये कहना था कि अभी मेरी छोटी बहन की शादी की है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही रिश्तेदार इतनी जल्दी मदद करेंगे कि वो दूसरी बेटी का भी फ़र्ज़ अदा कर सकें। उनका कहना था कि अभी मुझे कुछ और इंतज़ार करना होगा। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि उनकी बात गलत नहीं थी। जो कुछ हमने जमा किया हुआ था मेरी बहन की शादी में खर्च हो गया था। अब हम लोग बिल्कुल खाली हाथ थे। ऐसे मौक़ों पर अक्सर मुझे अब्बा की शिद्दत से याद आया करती थी। अगर मेरे अब्बा अभी ज़िंदा होते तो हम लोग इतनी मुश्किल ज़िंदगी कभी नहीं गुजार रहे होते। हमारे हालात भी दूसरे लोगों की तरह कम से कम इतने बेहतर तो होते कि हम अपनी ज़रूरियात के लिए और किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें इंतज़ार न करना पड़ता। खैर, जो भी होता है हमारी बेहतरी के लिए होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, यही सोचकर मैं चुप हो जाती, फिर अपने दिल को समझा लिया करती थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि मोहल्ले में मेरी जो सहेलियां रहा करती थीं, उनमें से एक एक करके सबकी शादी होनी शुरू हो गई। वो सारी मुझे भी शादी पर बुलाया तो करती थी, इसके साथ ये भी पूछा करती थी कि मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हो रही। सहेलियां, मोहल्ले वालों, जबकि रिश्तेदारों में भी ये बात होने लगी थी। और एक ही चीज़ कि अम्मा ने बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी जल्दी कर दी, जबकि बड़ी की शादी अभी तक उन्होंने नहीं की और ना ही कोई इरादा रखती हैं। मैं ख़ानदान में जिस किसी भी तकरीब में जाती तो वो लोग मुझसे पहला सवाल यही करते थे कि मेरी अम्मा ने मेरा कहीं रिश्ता किया है या नहीं, जबकि अम्मा ये कहती थी कि अभी तक कोई बात नहीं बनी। और मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया करता था, साथ ही साथ दुख भी होता था कि आखिर ये सारा कुछ मेरे साथ क्यों हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं शक्ल सूरत में किसी से कम थी, मैं खूबसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती थीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। अम्मा सबसे कहती थी कि अभी वो मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं, जैसे ही उनको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो वो वहाँ हाँ कर देंगी। लेकिन ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक झूठ था जो मैं लोगों से अपने आप से बोल रही थी, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि मेरी छोटी बहन की शादी के बाद मेरी अम्मा ने मेरे रिश्ते की बात चलाई नहीं थी।
और हमारे घर आज तक कोई रिश्ता नहीं आया था, वरना ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं तो शक्लो सूरत में बहुत अच्छी थी और ऐसे मामलात में तो यही चीज़ खूबसूरती ही देखी जाती है। कोई भी मुझे देखकर पसंद कर सकता था, लेकिन बात तो तब थी कि जब कोई मुझे देखने के लिए घर आता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और देखते ही देखते मोहल्ले में मौजूद मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई थी। अब तो इस मोहल्ले में मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं बची थी, जबकि मुझसे छोटी लड़कियों की भी शादियां हो चुकी थीं। जो भी औरत हमारे घर आती, पहला सवाल यही करती कि अम्मा ने अभी तक मेरा रिश्ता देखा है या नहीं, और साथ साथ जाते हुए ये भी कह जाती कि अल्लाह कोई वसीला बना ही देगा। लेकिन उनके लहजे में छुपे तंज को मैं अच्छी तरह से पहचान सकती थी कि किस तरह हर आने वाली औरत मुझे हैरत और तर्स की निगाह से देखती थी, जैसे ये मसला शादी का ना हो, कोई बहुत बड़ा मसला हो गया हो। अब तो मैंने मोहल्ले में आना जाना भी कम कर दिया था। पहले मोहल्ले में मेरी बहुत सारी सहेलियां होती थीं, उनके अलावा भी मोहल्ले की ख़वातीन से मेरी अच्छी खासी बोलचाल होती थी। मैं उनके घर चक्कर लगा लिया करती थी, लेकिन जब से लोगों ने बातें बनाना शुरू की थीं, मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता था। सारा वक्त घर में ही गुजार देती, यहाँ तक कि मैंने ख़ानदान वालों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। ख़ानदान में कोई भी शादी होती या कोई भी तकरीब होती तो अम्मा अकेली ही जाया करती। मुझे ऐसी तकरीबात पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और इससे पहले मैं जाया भी करती थी, कोई जाता या ना जाता, लेकिन मैं सबसे पहले तैयार होकर जाती और सबसे पहले वहाँ मौजूद होती थी। मुझे हमेशा से ही घूमने फिरने और ऐसे शोर शराबे वाली जगहों पर जाने का शौक़ था, इसीलिए मेरी जल्दी दूसरे लोगों से दोस्ती भी हो जाया करती थी। लेकिन अब मैं इतनी खामोश रहने लगी थी। वजह यही थी लोगों का रवैया, उनके सवालात का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, इसलिए मैंने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं लोगों से मिलूंगी, ना किसी के सामने जाऊंगी, ना ही मुझे देखकर किसी के दिमाग में सवालात खड़े होंगे। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। मुझे शादी का शौक़ था और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता था कि शादी हर इंसान की ज़रूरत होती है। तो जब मैं अपनी उम्र से छोटी लड़कियों को अपने ससुराल में देखती और ये देखती थी कि वो अपनी नई ज़िंदगी में किस तरह खुश हैं, जब मेरी बहन सज धज कर घर आया करती तो मेरा भी जी चाहता कि इसकी तरह मैं भी अपने आगे की अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। मेरा भी दिल करता था कि मैं भी अम्मा से मिलने के लिए बन ठन कर आया करूं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूं। इसीलिए मैं शादी करना चाहती थी। और फिर जब अम्मा से मुझे कोई उम्मीद न रही तो बिल आखिर मैंने अम्मा से इस सिलसिले में साफ साफ बात करने का सोचा कि आखिर वो मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी या मेरी शादी क्यों नहीं कर रही थी। मैंने ठान लिया था कि इस बार इस सवाल का जवाब लेकर ही रहूँगी। और फिर मैंने अम्मा से मौका देखते ही इस बारे में बात की और उनसे पूछा कि आखिर वो मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रही हैं, जो वो मेरी शादी नहीं करवा रही। मैंने साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने मेरी शादी ना की तो मैं अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर लूँगी। मेरी ये बात सुनकर अम्मा काफ़ी डर गई थी और काफ़ी परेशान भी हो गई थी। जब उन्होंने मुझे बताया, अम्मा का कहना था कि मेरे अंदर एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो चाह कर भी मेरी शादी नहीं करवा सकती। लेकिन वो कमी क्या थी, ये मैंने उनसे 1000 बार पूछा था, लेकिन उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई थी। उनका कहना था कि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ बता दिया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने उनसे यही कहा था कि उन्होंने ये बात मुझसे कहकर मुझे तो चुप करवा दिया है, लेकिन लोगों की बातों को वो कैसे सहेंगी और लोगों के सवालों का जवाब कैसे देंगी? क्या आप लोगों को भी यही बताएंगी कि उनकी बेटी में कोई कमी है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं करवा सकती? तो इस बात पर मेरे ऊपर कितने सवालात उठेंगे। उनका कहना था कि वो इस बारे में कुछ सोचेंगी, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें बहुत जल्दी कोई अच्छा हल मिल जाएगा। अम्मा के जवाब ने मुझे फिक्र में डाल दिया था। अम्मा का कहना था कि इसी वजह से वो मुझे नहीं बता रही थी, मुझे टाल रही थी। लेकिन जब मैंने जिद की तो फिर उन्हें मजबूरन मुझे सच बताना ही पड़ा था कि वो किस वजह से मेरी शादी नहीं करवा रही थी। अम्मा का यही कहना था कि वो भी चाहती हैं कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आबाद रहे। उनका कहना था कि मैं भी उनकी बेटी हूँ, ऐसा क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ और वो मेरी खुशी में रुकावट बनेगी, लेकिन मेरी शादी नहीं करवा सकते, ये खुशी मुझे नहीं दे सकती। काफ़ी दिन मेरे इसी सोच में गुजरे थे। मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। मैंने सारी चीज़ें तो पहले भी छोड़ दी थी और अब जिन चीज़ों के साथ मेरा वक्त गुजरता था, जो दीन फैलाने के लिए मैं करती थी, वो काम भी मैंने छोड़ दिए थे। मैं अपने कमरे में ही सारा दिन बंद रहती थी,
कहीं जाती थी, ना ही किसी से बात करती थी, जबकि अम्मा मेरी इस हालत को देखकर काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अम्मा भी लोगों के सवालों के जवाब दे देकर तंग आ चुकी थीं। अब उनमें भी और हिम्मत नहीं रही थी कि वो किसी के सवालों के जवाब दे सकें। उन्होंने भी घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। अब हम दोनों माँ बेटी घर में रहा करती थीं। मेरी छोटी बहन ने मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते अम्मा को दिखाए थे, लेकिन अम्मा बिना देखे ही इनकार कर दिया करती। उनका कहना था कि रिश्तों की कमी नहीं है, वो भी तलाश कर सकती हैं, लेकिन असल मसला ये था कि वो मेरी शादी किसी के साथ नहीं करवा सकती। और क्यों नहीं करवा सकती, इस बात का जवाब उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं दिया था। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था, एक फ़कीर रोज़ हमारे घर के बाहर आकर बैठा रहता। हम उसको आते जाते या तो कुछ पैसे दे दिया करते या फिर खाने की कोई चीज़ दे दिया करते। हुलिये से फ़कीर लगता नहीं था, लेकिन अब जैसे कि वो फ़कीर था तो इसमें कोई शक नहीं था। अम्मा को जाने क्यों इस फ़कीर पर कुछ ज़्यादा ही तरस आने लगा और वो इसकी कुछ ज़्यादा फिक्र करने लगी। एक दिन इसी तरह बैठे बैठे उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान भी हुई थी और खुश भी हुई थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता भी देख रखा है। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी कि मेरी माँ मेरी शादी करने के लिए मान गई, क्योंकि मुझे तो शादी करने का बहुत शौक था और मैं चाहती थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। लेकिन अम्मा की बात की वजह से देर हो रही थी। इनका कहना था कि मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं करवा सकती। चाहिए तो ये था कि मैं माँ से ये पूछती कि अब क्या वो कमी मेरे अंदर से ख़त्म हो गई जो उन्होंने अब शादी करने का फ़ैसला किया था। लेकिन उस वक्त मैं इतनी खुश थी कि मैंने उनसे कोई सवाल न किया। यहाँ तक कि मैंने ये भी नहीं पूछा था कि उन्होंने किसके साथ मेरी शादी तय की है। कुछ दिन इसी तरह गुजरे जब अम्मा ने शादी की तैयारियां शुरू की। उनका कहना था कि सिर्फ सादगी से निकाह होगा और मोहल्ले वालों को बस बता दिया जाएगा या कुछ लोगों को बुला लेंगे। ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा शोर शराबे की ज़रूरत है। जब मैंने अम्मी से ये पूछा कि उन्होंने किसके साथ मेरी शादी करने का इरादा किया है, तो इस वक्त जिस इंसान का नाम उन्होंने लिया, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा का कहना था कि वो इस फ़कीर के साथ मेरा निकाह करवाने वाली हैं जो हमारे घर के बाहर आकर बैठा रहता है। अम्मा ऐसा सोच भी कैसे सकती थी कि मैं किसी फ़कीर से शादी कर लूँगी। उन्होंने मेरे लिए एक फ़कीर ढूंढा था, जबकि मेरी छोटी बहन का शौहर एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत करता था। जब अम्मा ने मेरी ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे मेरी बहन का और मेरा फ़र्क बताया। उनका कहना था कि मेरी बहन में कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं कि जिसकी वजह से उसकी शादी में कोई रुकावट होती, जिसकी वजह से उसकी शादी न करते। लेकिन मेरी शादी ना करने के पीछे कुछ वजह है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस इंसान को मुंतखब किया, क्योंकि अम्मा का मानना था कि वो इंसान हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। अम्मा का कहना था कि उससे शादी से ये फ़ायदा होगा, एक तो ये होगा कि किसी को भी मेरा राज पता नहीं चलेगा, दूसरा ये कि लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और उसके बाद कोई भी मुझसे ये सवाल नहीं करेगा। अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये शादी मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़ुबान बंद करवाने के लिए की जा रही है। फ़कीर का नाम सुनते ही मैंने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन माँ का कहना था कि इस शादी में इनकार की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। जब उन्होंने फैसला कर लिया है तो मुझे इस फैसले को कबूल करना ही होगा। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि इस फैसले में सबकी भलाई है। अगर मैं ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचूं तो मुझे समझ आएगा कि इस फैसले में मेरी ही बेहतरी है। वो भी सब बहुत खुशी से नहीं कर रही बल्कि मजबूरी में आकर ही कर रही हैं। कुछ सोचते हुए मैंने 2 दिन बाद शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि इस शादी से मुझे खुशी ना भी मिली तो कम से कम मुझे दुख तो नहीं मिलेगा, जो दुख मुझे लोगों की बातों और उनकी अजीबो गरीब रवैये देखकर मिलता था। जो लोग मुझे अजीब हैरत और हसरत की निगाह से देखते थे, वो औरतें जो घर आती थीं और ये देखती थीं कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और फिर मुझे बेचारी निगाह से देखती जैसे मैं कोई मजलूम इंसान हूँ या मेरे अंदर कोई ऐसी खामी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। लोगों की जुबान बंद करने के लिए अच्छा तरीका था। फिर मैंने हाँ कर दी। एक ही हफ्ते में ये रिश्ता हुआ और इसी हफ्ते अम्मा ने निकाह कर दिया। मोहल्ले के कुछ करीबी लोगों को बुलाया गया। सब लोगों को बुलाना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से निकाह करवा दिया। ये बात सिर्फ मैं और अम्मा जानते थे कि जिस इंसान से मेरा निकाह हुआ है वो एक फ़कीर है, जबकि मोहल्ले में और किसी को इस बारे में नहीं पता था। अम्मा ने उससे अपना हुलिया ठीक करने का कहा। ठीक करने के बाद वो अच्छा खासा इंसान लग रहा था। अम्मा ने उसे समझा दिया था कि अब उसे मांगने की ज़रूरत नहीं, उसे खाना हमारे घर से मिला करेगा।
वो खाना खाकर जहाँ मर्जी आ जा सकता है। उसे भी अपने 3 वक्त के खाने से मतलब था। उसने भी खुशी खुशी हामी भर ली। निकाह हो गया और उसके बाद से ये होने लगा था कि वो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम घर आता। अम्मा उसे खाना दे दिया करती। खाना खाकर वो चला जाता। कहाँ जाता था ये बात हम नहीं जानते थे। ना ही अम्मा ने कभी उससे कुछ पूछा और ना ही कभी मुझे पूछने दिया। मेरी तो कभी उससे ज्यादा बात नहीं हुई थी। अम्मा ने कुछ अच्छे अच्छे जोड़े सिलवाकर उसे दे दिए थे कि आज के बाद से वो यही जोड़े पहना करे। इन जोड़ों को पहनकर वो अपना हुलिया ठीक करके वो कहीं से भी अब फकीर नहीं लगता था। अच्छा खासा खूबसूरत इंसान था। मुझे हैरत होती कि आखिर वो फकीर बन के क्यों घूम रहा था और क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा था, जबकि वो देखने में अच्छा खासा था। वो तो कहीं पर भी कोई भी काम करके 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सकता था। लेकिन ये सारे मेरे सवाल ही रहे थे, क्योंकि हल तो तब होते जब मेरी उससे कोई बात होती। मैं बैठकर उससे इस बारे में बात करती, लेकिन अम्मा ने मुझे कभी इस चीज़ का मौका दिया ही नहीं। अम्मा इसको मेरे करीब तक नहीं आने देती थी, जबकि उसने भी ऐसा कभी कोई मुतालबा नहीं किया था। लेकिन एक दिन उसने अम्मा से कह दिया कि जैसे कि मेरा इससे निकाह हुआ था तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन अम्मा ने उसकी बात सुनकर साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उन्होंने निकाह दिया है लेकिन रुखसत नहीं करेंगी जब तक कि वो अमीर नहीं हो जाता या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं आता कि वो एक बड़ा घर खरीद कर मुझे उसमें रखे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अम्मा ने ये शर्त क्यों रखी थी, क्योंकि माँ जानती थी कि वो तो एक भिखारी है। उसके पास इतने पैसे होंगे नहीं कि वो घर खरीद सके या फिर मुझे यहाँ से ले जा सके। और अम्मा तो यही चाहती थी कि वो मुझसे दूर रहे। कुछ अरसा तो इसने रुखसती का मुतालबा नहीं किया था, और अब जब उसने ये मुतालबा किया तो अम्मा ने भी ऐसी शर्त रखी कि जिसे पूरा करना उसके बस में नहीं था। इसलिए वो अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गया। अम्मा का यही कहना था कि जब तक वो अमीर नहीं हो जाता उनकी बेटी के पास नजर भी ना आए। अम्मा ने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि वो ये जानती थी कि मेरा राज भी दुनिया वालों के सामने ना आए और उनकी नज़र में शादी भी हो जाए। और ऐसा ही हुआ था। दुनिया वालों की नज़र में मेरी शादी भी हो गई थी, लेकिन मुझे उसके साथ रुखसत भी नहीं किया गया, क्योंकि वो इंसान नहीं जानता था और ना अम्मा उससे ये कह सकती थी कि मेरी कोई कमी है या कोई कमज़ोरी है या फिर कोई राज है जिसकी वजह से वो मुझे इसके साथ रुखसत नहीं कर रही। इसलिए अम्मा ने ये बहाना ढूंढा था और उसका ये तजुर्बा काम भी कर गया। और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आने वाले सालों में उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अम्मा से ये मुतालबा दोबारा कर सके कि उसकी बीवी को उसके साथ रुखसत कर दिया जाए। अम्मा इस शादी से काफ़ी खुश और मुतमईन हो गई थी, क्योंकि उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। एक ऐसा बोझ जो शायद कहीं अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। और अब तो वो लोगों के सवालों के जवाब देने से भी आज़ाद थे। कोई उनसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मेरे अरमान मेरे दिल में ही रह गए। इस नाम की शादी का मुझे क्या फ़ायदा था। मैं अपने ही घर में कैद थी और अपने शौहर से दूर थी। कहने को मेरा शौहर था, लेकिन उसके बावजूद मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और वो हमारे घर आता रहता। कभी कभार अम्मा की गैर मौजूदगी में भी आ जाया करता। मैंने उससे देखा था, वो देखने में खूबसूरत था और फिर मेरा शौहर भी था, इसलिए मुझे वो अच्छा लगने लगा। कभी कभार अम्मा की गैर मौजूदगी में मौका पाकर मैं उससे बात भी कर लिया करती थी। वो बात करने में भी ऐसे मालूम होता था जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने के साथ मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। उसे बिना देखे मेरा दिन नहीं गुजरता था और मैं सारा दिन बैठकर उसके आने का इंतज़ार करती रहती। कभी कभार अगर अम्मा के घर पर मौजूद होती तो अम्मा मुझे ना तो इसके सामने जाने देती और ना ही उससे मिलने देती। लेकिन इसके बावजूद भी या तो मैं छत पर जाकर उसे देख लेती या फिर खिड़की में खड़े होकर उसे देख लिया करती थी। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे वो नज़र आ रहा है। वो भी जिन नज़रों से मुझे देखता था, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे वो भी मुझे पसंद करता है, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन उसने ज़ुबान से कभी भी इसका इकरार नहीं किया। मैं चाहती थी कि वो इस चीज़ का इकरार करे, वो मुझे बताए कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। फिर उसके बाद मैं यही कहूँगी कि मुझे अपने साथ ले जाए। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गई थी कि मैं ये बात ही भूल गई कि माँ ने मुझे कुछ बताया था। अम्मा ने इस शादी को, इस निकाह को करते वक्त कुछ शर्त रखी थी। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मेरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर जब इंसान मोहब्बत कर बैठे तो वो सारी चीज़ें फरामोश कर देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब वो इंसान मुझे अच्छा लगने लगा,
मुझे उससे मोहब्बत हो गई तो मैंने बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे नज़दीक किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। अगर किसी चीज़ की अहमियत थी तो वो सिर्फ ये थी कि मैं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे कभी इसके साथ रुखसत करने के लिए तैयार नहीं होगी। अगर वो अमीर भी हो जाता तब भी अम्मा मुझे उसके साथ नहीं जाने देंगी, क्योंकि मैं जानती थी असल वजह उसकी गरीबी नहीं बल्कि कुछ और ही थी जो अम्मा ने भी नहीं बताई थी। इसलिए मैंने घर से भागने का इरादा कर लिया। शादी तो मेरी उससे हुई थी, ऐसे में मुझे बस घर से बाहर निकलना था और मैंने ऐसा ही किया था। एक दिन मौका देखकर जब अम्मा घर पर नहीं थी तो मैंने उससे साफ बात की। मैंने उससे यही कहा था कि इसको अमीर होने में काफ़ी अरसा लग जाएगा और अमीर हुए बगैर अम्मा मुझे उसके साथ रुखसत नहीं करेंगी। और ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? हमें अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में संजीदा होना चाहिए। मैंने उससे यही कहा था, क्यों ना हम घर से भाग जाएं। पहले तो वो इस बात पर खामोश हो गया, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने भी हामी भर ली। उसका कहना था कि रात को घर के बाहर वो मेरा इंतज़ार करेगा, मैं मौका देकर घर से निकलूं। इसके बाद वो मुझे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा। और बस फिर उसकी हाँ का इंतज़ार था। जैसे ही उसने हामी भरी मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली और रात को मौका देखते ही घर से बाहर निकल गई और उसके साथ भाग गई। हमें घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी। एक तो हम रात को घर से निकले थे और फिर रास्ते में भी कुछ वक्त लगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। उसका कहना था कि वो मुझे एक महफूज जगह पर ही लेकर जा रहा है। मुझे उस पर भरोसा था क्योंकि वो मेरा शौहर था। मैं जानती थी वो मुझे किसी भी बुरी जगह पर नहीं लेकर जाएगा। काफ़ी वक्त के इंतज़ार के बाद आधी रात को वो मुझे एक जगह लेकर गया। वो बाहर से देखने में भी बहुत खूबसूरत सा महल था और मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर इस बंदे का ताल्लुक इस महल से क्या हो सकता है। क्या वो यहाँ पर काम करता था? क्या यहाँ पर वो कोई मुलाजमत करता था? मुझे यहाँ किस हैसियत से लाया होगा? ये बात अंदर जाकर पता चलनी थी, इसलिए मैं उसके साथ अंदर चली गई। इस महल को देखकर ही मैं दंग रह गई थी, लेकिन होश तब उड़े जब वहाँ 11 आदमी मौजूद थे और सब ने ही सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था जो उनके पैरों तक आ रहा था। एक लम्हे के लिए तो मैं सब देखकर बहुत बुरी तरह डर गई और मैं फ़ौरन से पीछे को हो गई। मैंने पीछे कदम लेना शुरू कर दिए जब मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका कहना था कि मुझे इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं, ये लोग मेरी और उसकी मदद करने के लिए आए हैं। और मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर ये लोग थे कौन और हमारी कैसे मदद करने के लिए आए थे। ये लोग हमारी क्या मदद कर सकते थे जबकि हम अम्मा से बहुत दूर आ गए थे। इसका कहना था कि वो मुझे सारी बातें बाद में समझाएगा, फिलहाल हमें वही करना होगा जैसा वो लोग कहते जाएंगे। वो लोग अलग अलग जगहों पर बैठ गए। उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे घर में इस वक्त हल्की हल्की रोशनी थी और खौफ के मारे मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक लम्हे के लिए मैंने यही सोचा था कि मैंने अम्मा की बात ना मानकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अगर मुझे कहती थी तो मुझे इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस वक्त मुझे उनकी वो बात याद आई थी जो वो कहा करती थी कि वो मेरी शादी नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी है। और अब यहाँ भी ये सब देखने के बाद तो मुझे और भी घबराहट होने लगी थी और फिक्र होने लगी थी कि आखिर आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। कुछ देर इसी तरह गुजरी जब मेरे शौहर ने मुझे ऊपर कमरे में जाने को कहा। उसने मुझे कमरा बता दिया था। उसका कहना था कि मैं इसी कमरे में रहूं और वहां से बाहर निकलने की मुझे ज़रूरत नहीं। वो खुद मुझसे वहां आकर बात करेगा, मुझे सारी हकीकत बता देगा। ऐसी कौन सी हकीकत थी जो वो जानता था? इसके बताए हुए कमरे तक मैं पहुंच गई, लेकिन यहाँ आकर भी मुझे सुकून नहीं मिला था। मैं एक लम्हे के लिए भी बैठी नहीं थी और इसका इंतज़ार करती रही जबकि वो सारी रात गुजारने के बाद सुबह होने से कुछ देर पहले कमरे में आया था और हाथ में लाल रंग का धागा पकड़ा हुआ था। उसने वो धागा मेरे हाथ पर बांध दिया और दूसरा उसने अपने हाथ पर बांध लिया। उसका कहना था कि जो सच वो आज मुझे बताने जा रहा है मुझे उसे गौर से सुनना होगा। मैं उसे देख रही थी, पूछ रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या था। उसका कहना था कि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मेरी अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। उसका कहना था कि वो ये भी जानता है कि मेरे अंदर कोई कमी है। इस बात पर मुझे अच्छी खासी हैरत हुई थी कि वो ये सब कैसे जानता था। उसका कहना था कि वो कोई फ़कीर नहीं बल्कि वो फ़कीर का रूप लेके हमारे घर के बाहर बैठा करता था और सिर्फ मुझे देखने के लिए आता था। वो आज से नहीं बहुत सालों से मुझसे मोहब्बत करता है। उसने मुझे बताना शुरू किया था
उसका कहना था वो राज जो मेरी अम्मा ने आज तक सब लोगों से छुपा कर रखा है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, वो उसको अच्छी तरह से जानता है और उसकी हकीकत भी जानता है। उसका कहना था ये बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, बल्कि यूं कहा जाए कि ये बात उससे भी पुरानी है, जिस वक्त मैं पैदा हुई थी। मेरे शौहर का कहना था कि उसकी माँ और मेरी अम्मा बहुत अच्छी दोस्तें हुआ करती थी। वो बचपन के ज़माने की दोस्तें थीं और उनकी शादियाँ भी एक ही शहर में हुई थीं। किस्मत ने उनका इस तरह से साथ दिया था कि उनके ससुराल वाले घर भी साथ साथ थे, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। इस वक्त वो 8 साल का था जिस वक्त मैं अपनी माँ की गोद में आई, और जैसे ही मैं अपनी माँ की गोद में आई तो उसकी माँ ने मुझे मेरी माँ से मांग लिया। मेरे शौहर का कहना था कि मुझे देखते ही उसकी माँ ने मेरी अम्मा से मेरा हाथ मांग लिया था। उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए मैं उनकी बहू बनूंगी, जबकि मेरी अम्मा को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी थी। वक्त भी इसी तरह गुजर रहा था। जब मैं 5 साल की हुई तो मेरी माँ की दोस्त यानी कि मेरे शौहर की अम्मी, उन्होंने निकाह की बात की। उनका कहना था कि वो मेरा अपने बेटे से अभी निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि वक्त और हालात का कुछ भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो चाहती हैं कि अभी शादी कर दी जाए। लेकिन मेरे अब्बा को ये बात जब मालूम हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे बाबा का कहना था कि वो कभी भी मेरी शादी अम्मा की सहेली के बेटे से नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ है। वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करेंगे। इस बात पर काफ़ी हंगामा हुआ था। मेरे शौहर की अम्मा ने मेरे अब्बा की बहुत मिन्नत की। उनका कहना था कि उन्होंने बचपन से ही मुझे मांगा हुआ है, इस वक्त से जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन मेरे अब्बा ने उनकी एक न सुनी और मेरे कज़न के साथ मेरी मंगनी तय कर दी। जब ये बात अम्मा की दोस्त को पता चली तो उन्हें इस बात पर जी भरकर गुस्सा आया। उनका एक ही बेटा था। उनका कहना था कि मेरे अब्बा ने उनके बेटे के साथ ज्यादती की है। इस ज्यादती का बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा जादू किया कि मेरे माँ बाप मेरी शादी किसी से भी नहीं कर सकते, और साथ साथ उन्होंने मेरे माँ बाप को ये बात बता दी थी कि वो चाहकर भी मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकते। उन्होंने काला इल्म किया था कि अगर मेरी शादी होगी तो मेरा शौहर मर जाएगा। इसी तरह से मेरी अम्मा मेरी शादी नहीं करवा रही थी, जबकि मेरे शौहर का कहना था कि वो ये बात जान गया था। इसकी माँ ने उसे मरने से पहले ये राज बता दिया था। वो मुझे बचपन से ही पसंद करता था और फिर उसने बहुत कोशिश की, हमें तलाश किया। वो मेरी माँ को सच्चाई बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो मेरी अम्मा को सच बता देता तो मेरी माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ न करती। इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। उसका कहना था इसीलिए मेरी अम्मा मुझे उससे दूर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी इस जादू की वजह से मेरे शौहर का इंतकाल हो जाता। मेरे शौहर का कहना था कि उसने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की। ये सब लोग वही थे। उन्होंने इस जादू को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। अब वो लोग काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए हैं। उन्होंने वो धागा दिया था, इसलिए उन्होंने वो धागा अपने हाथ पर बांधा था और दूसरा मेरे हाथ पर। उसका कहना था कि अगर वो जिंदा रहा तो इसका ये मतलब है कि वो जादू ख़त्म हो गया, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो फिर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने उसे यही कहा था कि मुझे छोड़ दे और मुझे वापस मेरे घर छोड़ाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। लेकिन उसका कहना था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और बचपन से करता है। काफ़ी अरसा लगा था उसे ढूंढने में, और अब जब मैं उससे मिल गई थी तो वो मुझे छोड़ नहीं सकता। उसका कहना था कि वो जिएगा तो मेरे साथ जिएगा, और अगर मेरा साथ उसे नहीं मिला तो उसे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। उसका कहना था कि उसे मौत भी कबूल है, लेकिन मुझसे दूर नहीं रह सकता। उसने मुझे समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया है। उसकी माँ का किया हुआ जादू ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी डर था। 2 दिन गुजरे थे मुझे इस महल में रहते हुए। वो घर मेरे शौहर का था। उसका कहना था कि उसकी माँ का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया और बाप का इंतकाल पहले ही हो गया था। वो अकेला ही इस घर में रहता है। 2 दिन गुजरे थे जब अचानक मेरे शौहर का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ गया। घर के मुलाजमों से पूछती तो यही कहते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। मैं हर जगह उसे ढूंढकर थक गई थी। उसका फ़ोन भी बंद था। मैंने अम्मा को फ़ोन किया था और उन्हें घर बुला लिया। मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी। अब मुझे यही फिक्र थी कि आगे क्या होगा। जब मुझे इत्तला मिली थी कि मेरे शौहर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई, मुझे यही लगा था कि मैंने अपने शौहर की जान ले ली। मुझे यही लगा कि मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे इस शादी से इनकार कर देना चाहिए था। अम्मा ने मुझे संभाला था, समझाया था कि जो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन 2 दिन गुजरे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई
اور میرا شوہر صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ گاڑی میں موجود نہیں تھا، وہ گاڑی اس کے کسی دوست کے پاس تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس کا دوست بچ گیا جبکہ وہ اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے بتانے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ جس جگہ وہ گیا تھا وہاں پر اس کے فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پایا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر جتنی مجھے خوشی ہوئی تھی اتنی آج تک مجھے کسی چیز سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پیار سے مجھے گلے لگایا۔ اس کا کہنا تھا کہ موت کا ایک دن ہوتا ہے، نہ موت اس سے پہلے آتی ہے نہ ہی اس دن کے بعد آتی ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہتی ہے اور ہمیں لے کر چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک تعلق جادو کا ہے تو جادو ختم ہو گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اماں بھی وہیں پر موجود تھی۔ اماں نے بھی اسے اپنا داماد دل سے قبول کر لیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ اس پر بہت خوش ہے، وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن اس حادثے کے بعد وہ چاہ کر بھی مجھے میرے حصے کی خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ جب میرے شوہر نے اپنی ماں کے رویے کی ہم سب سے معافی مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ماں نے بہت غلط کیا، بہت غلط فیصلہ تھا، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ میری ماں کا کہنا تھا کہ غلط تو انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنی دوست کو جھوٹی امید دی اور جھوٹے دلاسے دیے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اس رشتے پر دل سے راضی تھی۔ وہ تو میرے ابا نہیں مانے جس کی وجہ سے رشتہ ہو نہیں پایا، لیکن میرا نصیب اسی شخص کے ساتھ جڑا تھا۔ لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی زندگی میں شامل ہونا تھا، مجھے اس کا ہونا تھا، لیکن اس وقت نہیں، اسی لیے وہ سب کچھ ہوا تھا۔ پر وہ انسان کیسے خود بخود میری زندگی میں آ گیا تھا؟ اماں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے میرے شوہر کے کہنے پر وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی مشکلات اور پریشانیاں دیکھی تھیں، اب میری زندگی میں اتنی خوشی، اتنی دولت تھی۔ اماں میری قسمت پر رشک کرتی تھی اور خوش ہوتی تھی، دل میں مجھے دعائیں دیتی۔ اب میں اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگی جس میں نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی کمی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ تھا۔ میری ہر خواہش پوری ہوئی تھی اور میں نے اپنا ہر ارمان پورا کیا تھا جو اتنے عرصے سے میں نے اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ کبھی زندگی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ اگر ایک وقت ہمارے پاس کچھ موجود نہیں تو اچھے کی امید رکھیں، اور یہ امید رکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اگر برا وقت ہے تو وہ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اگر اچھا وقت ہے تو وہ بھی کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھے اور برے حالات میں اپنے رب کو یاد کریں اور صبر کرنا سیکھیں۔ اگر برا وقت ہے تو اس پر صبر کریں، اور اگر اچھا وقت ہے تو اس پر غرور نہ کریں، بلکہ عاجزی سے کام لیں۔ یہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرواتا ہے۔